کنارے وہ سامنے دکھ رہے ہیں آپ کو گرین دیکھیں نا جی، وہاں سے آپ تشریف لائے اور اس جگہ پر جہاں یہ مال بنا ہوا ہے ادھر ہی ایک مسجد ہے جو واپسی میں آپ کو دکھاؤں گا، مسجد شیخین۔ اس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 5 نمازیں ادا کی اور نماز ادا کرنے کے بعد آپ وہاں سے تشریف لائے تو اس وادی میں یہاں پر آپ نے یہ پڑاؤ ڈالا، اس جگہ پر یہ مجاہدین کھڑے ہوئے اور اس پہاڑی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور یہاں جا کر آپ نے پورا جائزہ لیا اس میدان جنگ۔ اور یہ رزلٹ یہ نکلا، اندازہ یہ ہوا کہ دشمن اس پہاڑی کی پناہ لیتے ہوئے اس کے پیچھے سے آ کر ہم پر اٹیک کر سکتے ہیں، یہ ہمارے لیے خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو اس ٹینشن کو دور کرنے کے لیے، اس خطرے کو دور کرنے کے لیے آپ نے 50 تیر انداز تیار کیے، امتحان لے کر دیکھا جو سب سے بہترین تیر چلاتے تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر حکم دیا، 10 آدمیوں کا یہاں پر گروپ بنایا گیا، پوری پہاڑی پر بچھا دیا۔ ان کے لیڈر حضرت عبداللہ بن جبیر مقرر کیے گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس جنگ میں شہید ہو گئے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر اس پہاڑی سے لے کے احد پہاڑ تک اس طرح ٹھہرا کہ ان کا فیس اس سائڈ پہ تھا، یعنی اس سائڈ پر، اور دشمن مکہ سے ادھر سے آ کر اس پہاڑی کے پیچھے ایک بہت بڑی وادی ہے جس کو وادی عقیق کا اینڈ کہتے ہیں، اس جگہ پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا دشمنوں نے۔ ان کے 2 گروپ تھے، ایک گھوڑے سوار تھے اور کچھ پیدل چلتے تھے۔ گھوڑے سوار جو ہیں وہ خالد بن ولید کے ساتھ تھے، اور 100 گھوڑے سوار، اور باقی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے ان کے ساتھ پیدل چلنے والے۔ ادھر جب آپ پہنچے تو جہاں یہ مسجد بنی ہوئی، اس وقت یہ مسجد نہیں تھی۔ اس زمانے کا منظر آپ یہ دیکھیے کہ یہ نہ سڑک تھی، نہ یہ مسجد تھی، نہ یہ گھر تھے، نہ کوئی ایسی آبادی تھی، نہ کوئی روشنیاں تھیں۔ یہ ایک کھلا میدان تھا، یہ ڈیزرٹ تھا، یہ پہاڑ بہت نظر آ رہا تھا سامنے، اور یہ چھوٹی سی پہاڑی جبل رماح جس کو کہا جاتا ہے، اصل اس کا نام جبل عینین تھا کہ اس پہاڑی کے دامن سے 2 پانی کے چشمے بہتے تھے، اس سے یہ مشہور تھی۔ بعد میں اس کا تاریخی نام جبل رماح، تیر اندازوں والی پہاڑی رکھ دیا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں پر پہنچے اور آپ نے یہ پلاننگ کر لی تو آپ نے پیارے حمزہ آپ کے ساتھ تھے، حضور کے چچا، حضور کے انکل، جن کو ہم شہداؤں کا لیڈر سے مخاطب کرتے ہیں، سید الشہداء رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا چہرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتا تھا، بہت محبت تھی، چچا بھتیجے بہت کلوز تھے، اور فیس بھی بہت ملتا تھا، لنک بہت زیادہ تھی، پیار بہت تھا ایک دوسرے میں، سبحان اللہ۔ آپ نے اس بندے کے اندر وہ کوالٹی دیکھی، وہ دبدبا دیکھا، وہ رعب دیکھا، وہ اسٹائل زندگی دیکھی کہ آپ نے کہا میرے پیارے چچا آپ نے فرنٹ پہ ہونا ہے، جنگ اسٹارٹ آپ نے کرنی ہے، آپ کے ہاتھ میں، دونوں ہاتھوں میں تلوار ہوگی۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حقیقت میں آج بھی اس مسجد کا نام مسجد امیر حمزہ ہے، مسجد سید الشہداء کے نام سے مشہور اسی لیے ہے کہ یہیں پر ہی یہ لشکر ٹھہرا تھا، یہیں ہمارے پیارے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرنٹ پہ تھے، اور یہیں سے جنگ اسٹارٹ ہونے کا اشارہ ہوا تو ان لوگوں نے اس جنگ اسٹارٹ کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کے اندر کس کو جھنڈے کا حق ادا کرنے کے لیے چوائس کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق؟ نہیں۔ عمر فاروق؟ اللہ اکبر، جس سے شیطان بھی ڈرتا تھا، سبحان اللہ؟ نہیں۔ کون؟ حضرت زبیر؟ اللہ اکبر، میرے ساڑو، وہ بھی بڑے زبردست مجاہد، نہیں۔ حنظلہ؟ نہ، سبحان اللہ۔ انس بن نضر، یہ شہداؤں کے نام دے رہا ہوں میں آپ کو، انس، اللہ اکبر، جس کی بہن نے اس کی انگلیوں سے پہچانا کہ میرے بھائی کے ٹکڑے ہو چکے ہیں اس جنگ کے اندر، سبحان اللہ۔ انس؟ نہیں۔ ذرا ڈھونڈو کون ہوگا اس کا حق ادا کرنے والا، وہ نوجوان بچہ جس نے اپنی ماں سے چھپ کر اسلام قبول کیا تھا مکہ کے اندر، جو اللہ کے نبی کے سامنے جا کر ایک ایمانی جذبہ دکھایا کہ یا رسول اللہ میری ماں کے لیے دعا کریں، میری ماں مجھے منع کرتی ہے یہ نئے دین ایکسیپٹ کرنے کے لیے، میں بہت پریشان ہوں میرے پیارے رسول، مجھے کھانا پینا نہیں دیتی، مجھے بند کر دیتی ہے گھر کے اندر، یا رسول اللہ میں بہت ٹینشن میں ہوں، مجھے بتائیے میں کیا کروں؟ ہاں بیٹا مصعب جا، تجھے تو اللہ نے کچھ اور ہی کام لینے کے لیے منتخب کیا ہے، جاؤ مدینہ جا کر نمائندگی کرو، چھوڑ دو یہ مکہ، جا کے اہل مدینہ کو اسلام کی دعوت دو، نبی کا نمائندہ بن کے دکھاؤ، اس وراثت کا وہاں پر حق ادا کرو۔ یہ ایک سب سے پہلا انسان ہے، وہ نوجوان بچہ 17 سال کی عمر، امیر ترین خاندان کا لڑکا، جس کی ماں بہت پیسے والی عورت تھی،
इनके बारे में मशहूर था कि जो खुशबू जो स्मेल इनको मैसर होती थी मक्का में किसी दूसरे को नहीं मिलती थी। आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए उस ज़माने की उनकी ज़िंदगी और उनका तरफ हयात, सुभान अल्लाह, स्टाइल ज़िंदगी। लेकिन आज ये दीन के लिए सब कुछ छोड़ रहे हैं, अपना देश छोड़ रहे हैं, अपने बिजनेस छोड़ रहे हैं, अपना पैसा, अपना आराम छोड़ रहे हैं, अपनी माँ छोड़ रहा है और मदीने आकर ये नुमाइंदगी का हक़ अदा किया। आज हम मदीने आकर कुछ ना लेकर जाएं और कुछ नुमाइंदगी ना करें तो हम समझते हैं अल्लाह न करे हम महरूम हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि हमसे कुछ छिन गया या हमने कुछ नहीं किया, हम महरूमियत का लक़ब दे रहे हैं अपने आप को, नहीं। इसलिए आज ये तारीख़ सुनकर हमारे अंदर भी ये जज्बा होना चाहिए कि हमने भी कुछ नुमाइंदगी करनी है अल्लाह के नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। प्यारे नबी दोबारा आने वाले हैं, नहीं आने वाले ना? आप सबको यकीन है ना इस चीज़ का? आप आखिरी नबी थे ना लास्ट में, अब तो हम सब ने नुमाइंदगी करनी है, अब हम सब ने हक़ अदा करना है। ये सब के कंधों पर ये जिम्मेदारियां हैं, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, चाहे उसको लैंग्वेज अरबी आती हो या नहीं आती हो। लाजमी नहीं कोई लेक्चरार ही होना है, लाजमी नहीं कि कुरान का हाफिज ही हो, नहीं मेरे प्यारे दोस्तों। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे सहाबा कोई आलिम हाफिज नहीं थे, नहीं, इनमें काश्तकारियाँ करने वाले भी थे, इनमें मजदूर तबका भी था, लेकिन सब ने हक़ अदा करके दिखाया। वो अखलाक देकर दिखाया नबी का, वो इबादत करके दिखाई, वो नबी को फॉलो करके दिखाया, वो अल्लाह के सामने इस तरह मकबूल हुए कि क़यामत तक के लिए उनके लिए ऐलान किया गया रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। ये वो हस्तियाँ हैं जिनसे अल्लाह ऐलान कर रहे कि मैं उनसे राज़ी हो गया। इतना आसान है अल्लाह को राज़ी कर लेना। क्या कुर्बानियाँ दी होंगी इन लोगों ने और क्या हक़ अदा किया होगा, सुभान अल्लाह। तो आज इस जगह पर आकर हज़रत मुसअब की कुर्बानी, उनकी तारीख़ सुनकर हमारे अंदर भी जज्बा आना चाहिए। हमने भी वो नुमाइंदगी करनी है, हमने भी वो इस्लाम का झंडा लहराना है, इस्लाम के झंडे का हक़ अदा करना है इंशाअल्लाह। अल्लाह की कसम हमारा यहाँ खड़ा होना और दिल की तड़प और कुछ आंसू बहना यही अल्लाह को पसंद आ जाएगा जी। इस जन्नत के पहाड़ के सामने खड़ा होना ये अल्लाह की तौफीक है। अल्लाह हमको यहाँ पर लाया है, हमारा कोई कमाल नहीं, हमारा कोई पैसा नहीं, हमारी कोई जद्दोजहद नहीं, ये अल्लाह की तौफीक, हमारी इखलास और हमारा लब्बैक अल्लाह ने कबूल करके यहाँ ला के खड़ा किया है। अल्लाह ये नेमत हमसे छीने नहीं, अल्लाह बार बार लाता रहे। अल्लाह तूने इधर तक बुलाकर हमारे लिए खुशखबरी का ऐलान कर दिया कि अभी भी तू हमें चाहता है। या अरहमर राहिमीन, अल्लाह के नबी की नुमाइंदगी से महरूम न करना, वो जज्बा दे दे, वो सब्र करने की तौफीक दे दे। सब्र में इसलिए कह रहा हूँ कि सबसे बड़ा इम्तिहान इंसान का सब्र के बाद सब्र से होता है कि सब्र कर सकता है या नहीं कर सकता। बड़े बड़े इम्तिहान टूटते हैं, बड़े बड़े इस वक्त हमारे लिए फितने और मकर किया जा रहा है, बड़े बड़े धोखे दिए जा रहे हैं हमको, बड़े बड़े अंदाज हमारे लिए पेश किया जा रहा है, प्लानिंग है इस गफलत में लाने के लिए, हमारी नई जनरेशन को तबाही करने के लिए मुख्तलिफ दुश्मन हमारे लिए स्टाइल लगा रहा है, मकर फरेब कर रहा है। लेकिन अल्लाह की कसम अल्लाह सबसे बड़ा है। वमकरू वमकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह से मायूस नहीं होना, उसके रहमत से मायूस नहीं होना। इन्नहु ला ययअसु मिन रौहिल्लाहि इल्लल कौमुल काफिरून जाहिदून। जो अल्लाह की नेमत को समझ ही नहीं पा रहे, अल्लाह की कुदरत को समझ ही नहीं पा रहे, अल्लाह की अजमत को समझ ही नहीं पा रहे, वो अल्लाह की रहमत से मायूस होते हैं। लेकिन हम लोग मायूस नहीं होंगे इंशाअल्लाह, और मायूस ना होने के लिए दुआ मांगनी चाहिए। अल्लाह अपनी रहमत को बरसा हमारे लिए, अल्लाह तो अपनी ताईद हमारे साथ कर दे, अल्लाह हमारी नई जनरेशन को महफूज कर या रब्बुल आलमीन शैतानी फितनों से। ए रब्बुल आलमीन, हम अपने एतबार से तो बहुत कमज़ोर हैं, लेकिन जब तेरी ताईद हमारे साथ होगी, तेरी तौफीक होगी, तेरी रहमत होगी, तेरी रज़ा होगी, तो हमको अपना बना लेगा, तो या अरहमर राहिमीन हम इन शैतानी धोखों से महफूज हो जाएंगे और हम इंशाअल्लाह आगे कदम हमारे कामयाबी कदम चुनेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह से ये दुआ है इस मुबारक जगह पे अल्लाह ज़रूर कबूल कर रहा होगा। जैसे आज हम अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं और अल्लाह की यादें और नबी की यादों में गुम हैं और मोहब्बत का एक नज़ारा पेश कर रहे हैं,
यकीनन आसमानों पर भी ये मजहर बना हुआ होगा, ये मंजर खिंचा हुआ होगा। अल्लाह फरिश्तों के साथ बैठकर कह रहे होंगे ये मेरे बंदे क्या कर रहे हैं, ये मेरी प्यारी प्यारी बंदियाँ आखिर क्या जोश लेकर आई हुई हैं, आखिर क्या इनके जज्बात हैं। वह आलम, और उनको पता है, उसके बावजूद अपने फरिश्ते से बाकायदा पूछते हैं। अल्लाह अकबर, यार फरिश्ते बाकायदा कहते हैं रब्बुल आलमीन तो बेहतर जानता है, लेकिन आज ये तुझको चाह रहे हैं, आज तेरी तरफ लौटने का वायदा कर रहे हैं, आज नबी से मोहब्बत का मंजर पेश कर रहे हैं, आज उन सहाबा जिन्होंने ये कुर्बानी देकर इनके ऊपर एहसान और फजल किया है क़यामत तक आने वाले लोगों पर, या रब्बुल आलमीन उनकी यादों को ताज़ा कर रहे हैं। तेरा मोहम्मद भी यादों को ताज़ा करता था, वो भी बार बार यहाँ आते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इस तारीख़ को कभी आखिरी वक्त तक भूले नहीं। आपकी इस दुनिया से छोड़ने से पहले भी आपने एक ये मंजर पेश किया, आप यहाँ पर आए और यहाँ आकर आपने इस तारीख़ को ज़िंदा किया, इन शुहदाओं के ऊपर सलाम पढ़ा, इनके लिए दुआ की, इनके दर्जात बुलंद की दुआ करते हुए आप लौटने लगे। ज़रा मंजर देखिए, फरमाते हैं कि इस पहाड़ के करीब पहुँचे, इस कोने पर, ये जो किनारा है, यहाँ पहुँचकर अचानक आपकी चीख निकल पड़ी, इचकियाँ बन गई, आप रोने लगे। सहाबा ने सुन लिया वो आवाज़, करीब आ गए, या रसूल अल्लाह आप वहाँ तो रोए नहीं, वो जो असल मंजर था रोने का, इधर आकर आप रोने लगे, आपकी इचकियाँ बन गई हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको क्या याद आ गया, हमको बताइए, हम भी आपके साथ रोएंगे या रसूल अल्लाह, हम भी उस मंजर में आपके साथ शेयर होंगे। अल्लाहु अकबर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तुम्हें क्या बताऊँ, मुझे कौन याद आया है। सुनो, आज ये मोहब्बत के नारे और ये ऐलान अल्लाह के नबी का, इसी जगह पर आपने ऐलान किया था कि मुझे मेरे भाई बहन याद आ रहे हैं, जिनको मैंने देखा नहीं उन्होंने मुझे देखा नहीं। या रसूल अल्लाह, हम हैं ना आपके भाई बहन, नहीं, तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे सहाबा हो, मेरे भाई बहन वो जिन्होंने मुझे बग़ैर देखे, मेरे बग़ैर मुअजिज़ात देखे, वो मुझको कबूल करेंगे, मेरे अपने दिलों में मेरी मोहब्बत को जगाएंगे, मेरी सीरत को अपने घरों में जगाएंगे और अपनी जनरेशन को इस सीरत पर लगाने के लिए मेहनत करेंगे, इसके लिए दुआएं मांगेंगे, इसके लिए तड़पेंगे। ये वो मेरे भाई बहन हैं, मिल जाएं तो मेरा सलाम बोलना कि मोहम्मद तुमको सलाम देकर गया है, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है हौज़े कौसर पे। शैतानी धोखों में मत आ जाना, ये टेम्परेरी लाइफ है, ये गुजर जाएगी, ये क्रॉस कर दोगे, ख़त्म हो जाएगी, ये हमेशा रहने वाली जगह नहीं। ज़रा अक्ल से काम लेना, ऐसा ना हो कि तुम्हें ये मंजर दुनिया के फितने देखने को मिले और तुम उसमें मुब्तला हो जाओ, अल्लाह न करे अपनी हकीकत लाइफ को भूल जाओ, ऐसा मत करना। इसलिए हमेशा तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ने बार बार ये मंजर दिखाया है कि हय्या अला सलाह हय्या अला फलाह के ऐलान करते चले जाओ, क्योंकि मेरे बंदे मैं जानता हूँ, मैंने पैदा किया है, वो फितरत के एतबार से बहुत जल्दी धोखे में आ जाते हैं, बहुत जल्दी गफलत में आ जाते हैं, भूल जाते हैं। अल्लाहु अकबर, ये भूलने के भी अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया है, सुभान अल्लाह, कि मेरा बंदा भूलता बहुत है, सुभान अल्लाह। इसलिए अपने भूल को ख़त्म करने के लिए, अपनी गफलत को हटाने के लिए वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तंफ़उल मुमिनीन का ऐलान किया कि बार बार मेरे बंदे बंदियों ऐसा माहौल बना लिया करो, ऐसे दोस्त बनाओ, ऐसे अहबाब बनाओ, ऐसे उठने बैठने वाले बनाओ, ऐसी प्लानिंग करो अपनी लाइफ की कि ये वक्त मिस ना हो जाए। तुम्हारा वक्त बहुत कीमती है, हर लम्हा तुम्हारा कीमती है, अल्लाह की कसम। इसके इन लम्हात के बारे में हमसे पूछ होगी, अल्लाह पूछेगा कि बड़ी अजीब हदीस याद आ गई, फरमाया लन तज़ूला क़दमा अब्दिन, क़यामत के दिन जब सब खड़े होंगे मैदान हशर में, कहा एक कदम भी आगे नहीं करेगा जब तक कि इन 4 सवालों का पहले जवाब दो, फिर आगे आओ, फिर दूसरी बात करो। सुभान अल्लाह, ज़रा सोचिए वो मंज़र, ये अल्लाह की नबी पर वही उतरी हुई, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से ज़्यादा सच्चा कोई नहीं, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, अल्लाह से ज़्यादा सच्चा बताने वाला कोई नहीं। अल्लाह एक सीरियस ज़ात है, ये याद रखना। अल्लाह के अंदर ये नहीं है कि रियाकारियाँ, अल्लाह के अंदर ये नहीं है दिखावट, नहीं, अल्लाह मुनसिफ हैं, अल्लाह आदिल हैं, अल्लाह जुल्म नहीं करेंगे, अल्लाह ताला अदल इंसाफ का ऐलान करेंगे क़यामत के दिन। वहाँ जब तक कदम नहीं हटेगा जब तक कि 4 चीज़ों का जवाब नहीं दो, अन उम्रिही फ़ीमा अफ़ना व अन शबाबिही फ़ीमा अबला व अन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फ़ीमा अनफ़क़ह,
वअन इल्मिही मादा अमिला बिही। ये 4 चीज़ें हैं, डॉक्टर साहब आपको इसका तर्जुमा करके बताएंगे इंशाअल्लाह वहाँ पर जाके। जब तक हम इसका जवाब नहीं देंगे, कहने का मकसद ये है कि हमारी ये लाइफ एक एक लम्हा हमारे लिए बहुत कीमती है। इस कीमत का एहसास करें। पैसा इतना कीमती नहीं है जितना ये टाइम हमारा कीमती है। जितना हो सके सबसे ज़्यादा अगर नदामत और हसरत होगी इंसान को उस दिन, तो वो इस चीज़ की होगी कि वो वक्त बग़ैर अल्लाह के ज़िक्र में क्यों गुज़रा। सुभान अल्लाह। अल्लाह का ज़िक्र भी कोई ऐसे ज़रूरी नहीं कि आप कोई बहुत बड़े आलिम बनकर ही अल्लाह का ज़िक्र कर सकेंगे। नहीं 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 नहीं। मेरी 2 फुप्पियाँ, मैं आपको छोटी सी मिसाल दूँ, बड़ा अजीब सा मंजर है, ये लतीफ़ा सा है, बीच में आ गया, याद करिएगा इस चीज़ को। सुभान अल्लाह। बुज़ुर्गों को बता दीजिएगा ये चीज़। सुभान अल्लाह। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग ट्रांसलेटर हो इंशाअल्लाह खैर के साथ। आप लोगों ने पहुँचाना है इस उम्मत को, इस एतबार से बता रहा हूँ। लाजमी नहीं मेरा जिक्र करें, नहीं, ताकि रियाकारी ना हो, वैसी बात करें। सुभान अल्लाह। मेरी 2 फुप्पियाँ, मैं अभी इस्लामाबाद गया था पिछले हफ्ते। सुभान अल्लाह। बड़ी उम्र की हैं, 90 क्रॉस यानी 100 के करीब हैं दोनों फुप्पियाँ। वहाँ पर उनसे मुलाकात हुई, बेड पर पड़ी हुई थी। जब मैंने सलाम किया करती थी ऐसे बड़ी मुश्किल से आहिस्ता आहिस्ता, कुछ बात समझ में आ रही, कुछ बात समझ में नहीं आ रही। वक्त ऐसा आ गया सुभान अल्लाह कि भूल जाना, नमाज अदा करना मुश्किल, खड़ा होना मुश्किल, वज़ू करना मुश्किल, हिलना जुलना मुश्किल। सुभान अल्लाह। पड़ी हुई नहीं। मैंने कहा पप्पी जान, आप लोगों को मैं एक ऐसा फार्मूला बता के चले जाऊँ, सुभान अल्लाह, अगर उस पर आप अमल कर लें, अल्लाह की कसम आप जीत जाओगी और जन्नत मिल जाएगी आपको। मैं शॉर्टकट फार्मूला बता रहा हूँ आपको। कितना मुश्किल होता है इस वक्त आपको कुरान पढ़ना, आपको कुरान उठाना, कुरान समझना। अब हम नज़रें भी ऐसी हो गई हैं, नहीं पढ़ा जाता। सुभान अल्लाह। अब आपको कोई इबादत करने के लिए, नमाज़ पढ़ने के लिए जाना कितना मुश्किल हो रहा है। आपसे तो बैठा भी नहीं जा रहा, आप तो लेट के ऐसी पढ़ लेती हैं काम चलाना। वक्त आपका ऐसा आ गया, तो अब आपका जो बाकी वक्त है, आप किस तरह आपने इसको चलाना है, किस तरह, यानी कि क्या करें, किस तरह इस वक्त से फ़ायदा उठा लें। सुभान अल्लाह। कैसे शॉर्टकट रास्ता है जन्नत में जाने का, बता दो मुझे। मैंने कहा एक ही रास्ता है। मैंने वो हदीस बताई जो वो सहाबी आए, अल्लाह के नबी से पूछा, या रसूल अल्लाह मैं कितना दुरूद आपके ऊपर भेजा करूँ और कितना दूसरी इबादत करूँ। ये सारी हदीस आपको पता है, पाओ, हाफ, फिर उसके बाद ट्रिपल, फिर उसके बाद पूरा। उन्होंने कहा नहीं, अगर तुमने पूरी लाइफ ही, पूरा वक्त ही तुमने इसमें गुजार दिया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, ये वो फर्जम हो, तुम्हारे गुनाह भी माफ़, तुम्हारे हम गम भी ख़त्म, अल्लाह भी तुमसे राज़ी, बरकत ही बरकतें, जन्नत ही जन्नत। शॉर्टकट रास्ता है। आप बैठी भी हो, एक कोई तस्बीह ले दो ताकि याद आता रहे। सुभान अल्लाह। किसी भी स्टाइल की तस्बीह, क्योंकि भूल जाती हो ना आप, बड़ी उम्र है, भूल जाओगी तो तस्बीह याद दिला देगी आपको। छोड़ दो वो चीज़ें जो कहते हैं वो बिदअत कर रहा है, वो ये कर रहा है, आप तो छुप कर रही हो ना, कर लो, अपनी याद दहानी के लिए कर सकती हो, आपको इजाज़त है। आप ये तस्बीह पकड़ो और बस सिर्फ दुरूद शरीफ पढ़ती रहो, अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम। इंशाअल्लाह आपका सारा जो आपका जहन है, जिधर आपने जाना है, अल्लाह आपके सारे रास्ते खोल देगा, आपको ताकत भी देगा, हिम्मत भी देगा, शिफा भी देगा, सेहत भी देगा, हम भी हटेगा, गम भी हटेगा, टेंशनें भी ख़त्म होंगी और इबादत में दिल भी लग जाएगा। सुभान अल्लाह। ये है शॉर्टकट रास्ता कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुरूद भेजो और अल्लाह की रज़ा और खुशी पालो। मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा, बताना मकसूद ये था कि इस जगह पर वो जंग के वाक़यात हुए, इस जंग में 72 साहब अल्लाह के रास्ते में शहीद हुए। ये लोग जो यहाँ पर थे, इन्होंने जब देखा जंग शुरू में हमारे हक़ में है, ये अपना मोर्चा छोड़ के नीचे उतर आए। नीचे उतरना, लोगों ने कहा कि ये नबी की मुखालफत की, नहीं, नबी के मुखालफत करने वाले हमारे सहाबा नहीं थे। इनका नीचे उतरने का मकसद कुछ और था। इन्होंने इज्तिहाद किया था कि इस वक्त हम हट्टे कट्टे यहाँ पे खड़े हैं, हमने कोई जंग नहीं लड़ी और ये नीचे ज़ख्मी पड़े हुए हैं, ये माल गनीमत पड़ा हुआ है, ये क्यों उठाएंगे माल गनीमत, इनके अंदर कहाँ ताकतें हैं, हिम्मतें हैं। माल गनीमत कोई पैसा नहीं होता था उस वक़्त, माल गनीमत ज़्यादा जो माल गनीमत जंग में होता था वो जंगी हथियार होते थे, वो बड़े बड़े भारी भारी होते थे। इस जोश और जज्बे को लेकर ये लोग उतरे थे और इनको नबी की मुखालफत मकसूद नहीं थी। जब ये उतरे तो एक तरह से वो इज्तिहादी चाहे मुखालफत हो गई और जो नबी का जो मकसद था वो पूरा नहीं हुआ। उस मुखालफत के रिज़ल्ट में ये निकला कि खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो ओहद पहाड़ की चोटी पे चढ़ गए थे, सामने दिख रही है ओहद पहाड़ की चोटी, इधर ये लोग चढ़कर इन लोगों ने अपने आप को महफूज किया था। इनको ये मोर्चा खाली मिला, इस मौके से इन लोगों ने फ़ायदा उठाया। 100 घोड़े सवार नीचे उतरे, उस वादी को क्रॉस किया और क्रॉस करने के बाद इधर पीछे से आए, कुछ ऊपर चढ़ गए और कुछ ने यहाँ आकर इनको घेराव में ले लिया।
घोड़े सवारों में। जो ऊपर चढ़े उन्होंने जो 10 सहाबा ऊपर बाकी थे उन सबको शहीद कर दिया, उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए, जिनमें हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर जो इनके लीडर थे वो भी मौजूद थे, वो भी अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गए। इस तरह ये कुर्बानियाँ इन्होंने देकर एक अल्लाह के नबी का दीन को महफूज करके दिखाया। बहुत सारे वाक़यात हैं, यहाँ तो हम पूरी रात खड़े रहे थे। एक एक सहाबी का वाक़या मज़ेदार है। एक हज़रत नुसैबा का सुना और सुभान अल्लाह, नुसैबा बिनते कअब, ये उम्मे अमारा कहलाती थी रज़ी अल्लाह अन्हा। ये भी बड़े जोश और जज्बे वाली औरत थी, सुभान अल्लाह। इन्होंने देखा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुछ ख़तरा है, कुछ अटैक हो रहा है। सहाबा पीछे हट गए, दुश्मन आपकी तरफ लपक रहे हैं, आपकी जान को खतरा है। इन्होंने बाकायदा दुश्मनों के साथ चैलेंज किया और अपनी तलवार निकाली और बाकायदा उनके साथ चैलेंज करते हुए हुजूर की तरफ पहुँच गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मुकाबले करते हुए 2 मुशरिकीन की गर्दन अपने हाथ से उड़ा दी और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुँचकर तसल्ली दी, या रसूल अल्लाह, आज नुसैबा ने अल्लाह से वायदा किया है कि जब तक नुसैबा ज़िंदा है मोहम्मद पर दूसरा अटैक नहीं होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप टेंशन मत लीजिए, जब तक ये नुसैबा के अंदर जान है आप पर कोई नेक्स्ट अटैक नहीं आएगा। मुकाबले करती रहीं तो आप फरमाते थे बार बार, वाह उम्मे अमारा, वाह, जो आज उम्मे अमारा ने किया वो कौन कर सकता है। ये आपके अल्फाज थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मे अमारा, जिब्रील आए हैं आप अल्लाह की तरफ से, आपके बारे में सलाम दिया गया है अल्लाह की तरफ से और आपसे कहा गया कि उम्मे अमारा आज जो मांगना चाहती है मांग ले, मैं कबूल करने के लिए इसी वक्त तैयार हूँ। ये प्रॉमिस किया अल्लाह ताला ने स्पेशल उम्मे अमारा नुसैबा बिनते कअब, जाओ और तो फ़ख्र करो क़यामत तक मर्दों के ऊपर कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एमरजेंसी हालत में अगर किसी ने बचाया तो औरत ने बचा कर दिखाया था। अल्लाहु अकबर, ये जान बचाई है और इसकी फजीलत के लिए जिब्रील तशरीफ़ लाए थे और बाकायदा आपसे वायदा किया गया कि आज जो मांगोगी तुमको मिलेगा। कहा या रसूलल्लाह, आज तो एक ही तमन्ना है दिल के अंदर, अगर मेरी दुआ कबूल होनी है तो आप मुझसे अल्लाह से ये मांग लीजिए। क्या मांगना है? जंग जीत जाएँ, मांग लो, जीतेंगे जंग इंशाअल्लाह, दोबारा अटैक ना हो, नहीं होगा, मुसलमानों का बोलबाला हो, मांग जल्दी से, इज्जत मिले, सुभान, दीन दुनिया में फैले, इस्लाम पर जम जाएं हम लोग, अल्लाह राज़ी हो जाए। असल ये सब तो वायदे अल्लाह ने पहले ही करे हुए हैं हमसे, ये तो देगा अल्लाह, सुभान अल्लाह, इससे मुझे कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन आज जो मांगना है वो दिल की तड़प और तमन्ना है। क्या या रसूल अल्लाह, मैं सोचती हूँ कि क़यामत के दिन वो तो हमारे अमाल नहीं होंगे जो आप तक हमको पहुंचा दें। आज दुनिया में हम आपकी मईयत मिली है, आपका साथ मिला है, आपके साथ उठना बैठना मिला है, आपको देखने का शरफ़ मिला है, आपकी बातें सुनने का शरफ़ मिला है, ये ईमान ताज़ा होने के मौक़े मिले हैं। आपके मौजिज़ात देखकर या रसूलल्लाह हमारा ईमान मजबूत होता है, बुलंद होता है। हम इस चीज़ को खोना नहीं चाहते, आपकी मईयत को खोना नहीं चाहते। किसी को अल्लाह रखे, आपके साथ ना रखे, नुसैबा को तो कहें अल्लाह इसके साथ ही रखना मोहम्मद मुस्तफ़ा को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप मुस्कुरा दिए, आपने कहा नुसैबा तुझे मुबारक हो, तेरी दुआ कबूल हुई, तुझे ये मकाम मिला, जन्नत में तू मेरे साथ होगी। अल्लाहु अकबर। ए अल्लाह, तू तो इतना गफूरुर रहीम है, तू तो इतना देने वाला है, तेरे तो ऐसे ख़जाने हैं या रब्बुल आलमीन। जब तू एक नुसैबा की तड़प पूरी कर सकता है तो आज नुसैबा की बातों को कर कर जो हमारे अंदर जज्बा पैदा हुआ है, जो हमारे अंदर जोश आया है, जो हमारे अंदर अल्लाह तुझे राज़ी करने का, तेरे दीन का मिशन, नबी का मिशन पूरा करने का वायदा लेके जा रहे हैं इस जगह से, तो जब तूने उसको कबूल किया तो हमारी भी दुआ तू कबूल कर। या अल्लाह हमें भी नबी की मैयत दे देना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अल्लाह तेरे ख़जाने में कोई कमी थोड़ी आ जाएगी, या अल्लाह तू दे सकता है। या अल्लाह जो सबसे मकबूल हस्ती इस वक्त यहाँ खड़ी है उसके बदौलत या अल्लाह हमें भी ये उसके तोफ़ैल में हमें दे दे। या अल्लाह उस वक़्त ऐसा हमको तो बना देना या रब्बुल आलमीन कि नबी का सामना करें तो हुजूर खुश हों हमें देखकर, हुजूर हमें खुश हो जाए। ये बहुत बड़ी चीज़ है, अल्लाह की कसम कि हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें देखकर खुश हों। जब हम हुजूर को देखें तो हमें तो खुशी मिलेगी, लेकिन उनको खुश होना चाहिए कि तुमने मेरे विरासत का हक़ अदा किया। आप फरमाते थे अपनी मजलिसों में कि ला तुसव्विदू वजही, इसका तर्जुमा अगर करूँ तो बड़ा अजीब सा है कि मुँह काला मत करना मेरा, लेकिन इसका एक अजीब मंजर जो तफसील से कहा जाएगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मकाम दिया है, मकाम महमूद, जो इज़्ज़त दी है, ऐसा ना हो मेरी उम्मत ऐसा काम करके आए कि मुझे कुछ इंसल्ट सी महसूस हो, कुछ लगे अरे वाह मैं तो बहुत तड़प कर तुमसे तुम्हारे लिए मांगा था,
मैंने तो तड़प कर और बड़ा सब्र करके इस दीन को तुम तक पहुंचाया था। बड़े बड़े ज़ख्म सहे थे, बड़ी बड़ी तकलीफ़ें सही थी, बड़े बड़े जारिहाना अंदाज से सहे थे, लेकिन अल्लाह के लिए उनको माफ़ करके अपनी उम्मत की खैरख्वाही के लिए मैंने अल्लाह को मनाने की कोशिश की थी। क्यों तुमने इसका हक़ अदा नहीं किया? कौन सा मुश्किल था तुम्हारे लिए? ये कौन सा डिफ़िकल्ट था? अल्लाह अकबर, ऐसा ना हो यार, या अल्लाह, ऐसा ना हो, ऐसा मौक़िफ़ ना हो ए रब्बुल आलमीन। तो हमारी ये थोड़ी सी मेहनत यहाँ खड़ा होना, मुझे पता है कि हमारी औरतें बुज़ुर्ग तकलीफ़ हो रही होगी, लेकिन या अल्लाह तेरे खातिर खड़े हुए हैं, तेरे नबी के खातिर खड़े हुए हैं, इन सहाबा शुहदाओं के खातिर खड़े हुए। या अल्लाह हमें भी इनकी मैयत देना, इनके दीवार में हमें हशर करना। या अल्लाह हमारे जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमा दे। या अल्लाह जो हमारी नेक उम्मीदें हैं या अल्लाह उसको तू कबूल फरमा। या अल्लाह या रब्बुल आलमीन हमें शैतानी धोखों से बचा या रब्बुल आलमीन। या अल्लाह हर शर से महफूज फरमा। या अल्लाह ईमान इतना दे दे हमारे दिलों के अंदर कि हर हम इम्तिहान में हम सब्र करके तुझे राज़ी करके दिखा दें या रब्बुल आलमीन। या अल्लाह तू हमसे राज़ी होगा, तेरी ताईद होगी तो हम कामयाब हो जाएंगे, वरना अल्लाह ना करे या अल्लाह हम बहुत कमज़ोर हैं। तूने कहा वख़ुलिक़ल इंसानु ज़ईफ़ा। या अल्लाह हमारे अंदर बहुत वीकनेस, हम इसका एतराफ़ कर रहे हैं। या रब्बुल आलमीन इस एतराफ़ को तो कबूल कर या अल्लाह, और हमारे अंदर ऐसी ताकत भर दे, ऐसी हिम्मत दे दे जैसे तूने मोहम्मद मुस्तफ़ा को दी थी, जैसे तूने सहाबा को दी थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे तूने शुहदाओं को दी थी जिन्होंने दीन के लिए अपनी जान देकर इस दीन को बचा कर दिखाया, इस दीन के लिए बुलंद कर का ऐलान करके दिखाया, एक आला मकाम लेकर दिखाया कि आज अगर यहाँ आए हैं और इनको याद कर रहे हैं तो ये अल्लाह की तौफीक है। अल्लाह ने हमारे दिलों में की मोहब्बत डाली है, अल्लाह ने यहाँ लाकर खड़ा किया। ऐसे ही रिज़ल्ट हमारे लिए भी होगा जब हम दीन के लिए कुछ किरदार अदा करेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह पूरी कायनात के दिलों में मोहब्बत डालकर उनकी दुआएं हमारे हक़ में कबूल करेगा इंशाअल्लाह। कमा तदीन व तुदान, जैसे दोगे वैसे तुमको मिलेगा उसका रिजल्ट। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह का कानून है, ये बदलता नहीं। तो इसलिए आगे बढ़ो, हिम्मत से काम लो, घबराओ नहीं, मायूस मत हो, कदम पीछे नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ो। और इसका आगे बढ़ने का सबसे खूबसूरत फार्मूला मैंने आपको दुरूद शरीफ बताया। कसरत से यहाँ से लेके जाओ ये दुरूद शरीफ, ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं। आप दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाह रास्ते खोल देगा, इल्म के रास्ते भी खोल देगा, समझ के रास्ते भी खोल देगा। आपकी बोल मकबूल होगी, दिलों में उतरेगी अल्लाह की कसम। ये थोड़े अल्फाज, ये कारनामे होंगे, इससे ये आपके लिए किरदार बदलने वाले ये अल्फाज होंगे। तो इसलिए थोड़े वक्त में ही अल्लाह बहुत काम ले लेगा। आप लाजमी नहीं कि मैंने आपको बताया कि आप बहुत बड़े लेक्चरर या स्कॉलर बन के दिखाएँ, नहीं। हिम्मत है, आगे टारगेट बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये चीज़ें आप इस्तेमाल करें, यूज़ करें, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह रास्ते खोल देगा। ये दुआएं हमारी ज़ाया नहीं जाएंगी, कल मिलेंगे जन्नत में और ये घड़ियाँ वहीं आप